talking. So, what do we talk about? Well, we talk about dating, relationships, single life, and practically everything in between. But you know what? We are no experts. We are just explorers of life. Hi, I'm Amrit. Hi, I'm Priyanka. I am Prerna. So join us on our misadventures. Hello listeners, how you doing? The trio is back, Priyanka, Prerna and Amrit. And to begin with, we have to say thank you so much for pouring your heart out to us. हम लोगों के पास आपके इतने अमेजिंग चिट्ठियां आई हैं, इतने अमेजिंग मेल्स आए हैं, जिसमें आप सबने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए हैं और बहुत सी ऐसी बातें शेयर की हैं जो आप हमसे अभी भी सुनना चाहते हैं और हमसे जानना चाहते हैं. One of the mails that we actually picked up was about toxic traits. A lot of you guys want to know what are these toxic traits which are visible initially only in the dating that we can avoid and we should not get into it. Basically, लोग हमसे ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि क्या हमें इस आदमी पर या इस औरत पर और टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, should we even get into dating them or not. I think it's very important to know initially only क्योंकि हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि we ignore these things. We ignore a lot of things, especially when we are in our 30s and we want to have a partner. We are dating with that sense. So a lot of times कुछ चीजें हमारे सामने होती हैं and we are like नहीं यार मैं कुछ ज्यादा ही जजमेंटल हो रही हूँ. मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है when I am like okay maybe I am being too judgmental and I should ignore this. बट फिर बम फट जाता है. सो टेकिंग अवे फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग प्रेरणा, आई थिंक आज हमें यही डिस्कस करना चाहिए कि डेटिंग में शुरुआत में ही ऐसी क्या टॉक्सिक ट्रेट्स होते हैं और से रेड फ्लैग्स में भी जो लड़कियों को एज वेल एज लड़कों को इग्नोर नहीं करने चाहिए सामने वालों के बारे में. प्रेरणा, तुमको क्या लगता है, व्हाट आर द टॉक्सिक ट्रेट्स दैट वी शुड नॉट इग्नोर इन द बिगिनिंग? I think one of the things that I have taken from my experiences कि अगर कोई बंदा जैसे मेरे साथ एक बार हो चुका है कि वन गाय वॉज रियली क्रीपी एंड पहली बार जब मिला था ही वॉज वेरी टची फीली टाइप विच गिव्स यू दैट काइंड ऑफ थिंग की शिट यार इस बंदे पहली मुलाकात आदमी लोग टची कुछ ज्यादा ही था and in fact it was so creepy that it shook me completely because I was like yeah he was trying to force himself like forcefully kiss me but I'm sure you didn't end up dating that guy. I kind of met 3 times after that. So in spite of that, yeah, he apologized. Like I told him ki listen, I am not comfortable with the way you behaved. So he apologized and he tried to make me comfortable about it ki you know listen, I was thinking and this and that, so shall we date. And ये चीज तब हुई थी जब डेट हमने डिसाइड नहीं किया था. So मैंने सोचा चलो ट्राई करके देख लेते हैं. बट आई थिंक लक्षण तो पहले ही दिख गए थे उसके कि वो किस टाइप का बंदा है और मुझे बाद में भी कभी वो कंफर्टेबल वाली फीलिंग नहीं आई. लाइक इवन व्हेन आई वाज मीटिंग हिम आई वाज लाइक I don't know why it's very creepy. It's so one of the toxic traits is getting a lot touchy and getting physical in the first meeting itself. Yeah. For anybody. Guys, if the women are being touchy, I think that's a red flag. Avoid. Girls, if the guys are being a little too touchy in the first meeting only, I think just avoid. I think it is more about your comfort level. If you guys are not comfortable and someone is, you know, getting too cozy with you, then it is a red flag. If you guys have certain kind of chemistry and it's working out, I think it's great. It's a matter of consent. It's a matter of consent. Absolutely. If it is consensual, absolutely go ahead. If it and is do not do not hesitate to say no if you're not comfortable. आई थिंक कितनी बार गर्ल्स इंटिमिडेट हो जाती हैं या Yeah. समटाइम्स इवन बॉयज फील Yeah. इंटिमिडेटेड कि यार लड़की हाथ लगा रही है, अगर मैं इसको बोल दूंगा कि हाथ हटा ले तो वो कहीं ऑफेंड ना Yeah. हो जाए. बट आई थिंक इसमें देयर इज नथिंग टू फील ऑफेंसिव A अबाउट. lot of times, you know, guys sometimes, I mean, मैं as a girl ये चीज बोल रही हूँ, I am sure it might be happening to guys also. Sometimes the other person gaslights you about this, कि we are on a date, so what if I touched you? No, even if you are dating, you can say no if you're not comfortable, and there is nothing wrong with that. आई थिंक यू आर राइट, करेक्ट है. बट जैसे और भी चीजें रेड फ्लैग्स के लिए, जैसे बहुत सारी लड़के होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, ओके, एंड लड़कियां होती हैं जो स्मोकिंग करती. बट जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, लाइक मेरी एक फ्रेंड थी, शी इज अ स्मोकर, मतलब लाइक चेन स्मोकर.
और वो एक लड़के को मिली, तो वो लड़का उससे मतलब लाइक इतना अट्रैक्ट हो गया कि उसको सब चीजें उसकी बहुत अच्छी लग रही थी कि नहीं यार ये तो लड़की अच्छी है, मतलब गुड लुकिंग है, सारी चीजें हैं। बट वो फर्स्ट डेट में कम से कम उसके साथ बैठ के ना 9 से 10 सिगरेट पी कर आ गई होगी एटलीस्ट। तो उस लड़के ने बोला हाँ ठीक है मेरे लिए ओके है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई एम ओके विद दिस। एक डेट के बाद, 2 डेट के बाद, 3rd डेट के बाद, 4th डेट के बाद उस लड़के को ऐसा एहसास हुआ कि हेलो मैं पूरे टाइम ऐसी जगह पे नहीं रह सकता जहां मुझे सफोकेशन हो जाए, जहां और लाइक धुआं उड़ता रहे, सारी चीजें हैं। और उसने उस लड़की को टाटा बाय बाय कर दिया। सो इससे क्या हुआ एग्जैक्टली देखो, ये रेड फ्लैग है। उस लड़के को ना मुझे लगता है अगर कोई तुम्हें पहले से ही बता रहा है कि मेरे में ये चीजें हैं, तो या तो 1-2 डेट में टाटा बाय बाय कर दो। बट तुमने उस लड़की को बोला आई एम ओके, एक अच्छी डेट मारी, सॉफ्ट कॉर्नर जाग गया उसके अंदर। तो ये सारी चीजें अट्रैक्शन में अंधा हो गया वो। Actually यही होता है। See, there are all of us have things in us which are non-negotiable when it comes to having a partner. I think we should stick by that rather than पहली मीटिंग में अगर मेरे को पता है कि यार स्मोकिंग नॉन नेगोशिएबल है, तो जस्ट बिकॉज फॉर एग्जाम्पल द गाय इज गुड लुकिंग और ही इज अ गुड टॉकर, आई शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, बिकॉज सूनर और लेटर ये बाद में मुझे पोक करता हुआ आएगा ही और मुझे लगेगा कि नहीं मुझे नहीं रहना है इसके साथ क्योंकि ये स्मोकर है। यस, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं हमारे घूमता रहती है वो चीजें कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। लाइक गड़बड़ नहीं है बट हाँ आप नहीं उसके साथ एडजस्ट कर सकते हो। Why should you compromise on your needs, on your, and this is a basic thing यार, मतलब ये बहुत basic चीज है। So then there is one, okay, so to summarize, if for somebody smoking is a non-negotiable, I think we should totally avoid. If for somebody touching or getting physical without consent is a non-negotiable, we should totally avoid that. Moving on to some more toxic traits. What do you think? So I think for me one of the biggest toxic traits that can be is baggage of previous girlfriends or boyfriends. I have faced this twice when I tried to date a divorced guy. So in fact the first meeting went really well, and so well that I was like हाँ यार this seems sensible, we should meet again. Before the second meeting, while we were just talking and getting to know each other, twice he told me, oh you are a Scorpion, oh you also work in the media industry, you are so like my ex-wife was like this, was like that. I think that, so I think that was a complete deal breaker for me. That moment I decided कि भाई मुझे नहीं कंपेयर होना किसी की एक्स बीवी के साथ या एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। अगर कोई मुझे ये चीज बोले ना, यू आर लाइक माई एक्स गर्लफ्रेंड और यू आर लाइक माई एक्स वाइफ, आई थिंक आई वुड जस्ट एंड इट लाइक दैट। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। मैं ऐसे ही एग्जाम्पल देती हूँ कि लाइक किसी को मैं मिली थी, एक डेट किया था मैंने उसको, जस्ट लाइक आई थिंक फॉर अ मंथ। तो जब मैं उसे स्टार्टिंग में मिली थी तो पूरा मतलब सब कुछ ठीक ठाक नॉर्मल सब चल रहा था। बट जैसे ही अमृत 10 से 12 दिन बीतने लगे ना, इस कंडीशन मेरी जो एक्स थी वो इस कंपनी में काम करती थी, मेरी एक्स के बाल बहुत अच्छे थे, तो ये सुनते सुनते बिकॉज आई थिंक नो यार कोई अपनी एक्स से इतना ज्यादा वो है तो ठीक है चलता है। एंड वन डे अभी तुम्हारे तो इमोशंस के लिए जाग रहे हैं एंड ऑल ऑफ सडन बोलता है यार मैं कभी अपनी एक्स से निकल ही नहीं पाया हूँ। ओह डैम। तो सुनो ना, मैंने बोला मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे ना मेरी एक्स की तरह ट्रीट करो। तो मेरे को ना इतना गुस्सा आया ना, मैंने उससे बोला कि सुनो जब तुम निकल नहीं पाए हो तो तुम देख क्या रहे हो, तुम क्या खोज रहे हो, क्या कर रहे हो। ये अलग लेवल का रोल प्ले है कि तुम मेरी एक्स की तरह मुझे मतलब शी लव्ड मी लॉट। मैंने कहा तो मतलब मैं क्या कर लूं। कहता मेरे को लगा कि शायद बिकॉज मैं डेटिंग ऐप में नया आया हूँ तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं अभी तक उसमें अटका हुआ हूँ और मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे शायद उससे निकाल पाओ। एक तो ये जो बर्डन लेकर आते हैं ना साथ में बैगेजेस एंड ऑल, गाइज एंड गर्ल्स बोथ यार। बट यार मुझे तकलीफ तो हुई ना, तुमने मतलब इट्स अ रेड फ्लैग लाइक कि So I think this is one of the biggest red flags when a person has a baggage of the ex. So ये तुम्हें पहले कभी पता चला, लाइक 1 महीने बाद जो तुम बता रही हो ऐसा हुआ, कभी ऐसा हुआ था कि तुम मुझसे स्टार्टिंग में मिल रही हो एंड ही इज जब मैं उससे स्टार्टिंग में मिली थी तो उसने मुझे बताया था कि मैं एक लड़की के प्यार में था बहुत टाइम तक। शी इज द वन जिसकी लाइफ में जो मेरे लिए इतनी वो थी, और वो पिछले कुछ 5-6 सालों से अकेला था। ओके तो अभी 5-6 ईयर का जब डिफरेंस आएगा तो आप कभी ये सोचोगे, आपके दिमाग में आएगा कि सुनो ना ये अभी भी अटका होगा। यार 5-6 साल में भी लोग मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। वही सैड, कुछ नहीं कर It is पाते। very sad. I'm feeling sad. I'm feeling sorry for this man, whoever he is. It is fine यार, अभी तुमने डिसाइड किया ना कि तुम्हें मूव करना है, ओके तो तुम अपना 100% दोगे ना मुझे यार। पर अगर आप डेटिंग में घुस रहे हो ना, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, अगर आप इस डेटिंग वर्ल्ड में घुस रहे हो, प्लीज यार अपने बैगेजेस को घर पे छोड़ कर आओ। फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम आई वॉजंट
dating because I realize कि मैं एक particular baggage में घूम रही हूँ and I need to get rid of that. I need to heal myself from the past hurt and everything. So हर तरह से जब आप इमोशनली किसी को देने के लायक हो तभी आप एक रिलेशनशिप की तैयारी में जाओ, तभी आप डेटिंग करो. बिकॉज everybody is out there to date somebody. Everybody has a past. Everybody has been hurt. So please do not bring your hurt into somebody else's life. एंड आई थिंक हम लोग यहाँ पे कोई मरहम लगाने वाला नहीं ढूंढ रहे हैं यार. एंड फॉर अदर्स ऑल्सो, फॉर मेन ऑल्सो, आई डोंट थिंक यू शुड बी लुकिंग फॉर समबडी हु कैन हील योर वुंड्स. प्लीज हील योर ओन सेल्फ. वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू हील आवर ओन सेल्फ. वी जस्ट नीड समबडी हु वी कैन पार्टनर विद. वी आर नॉट लुकिंग फॉर समबडी हु कैन कंप्लीट अस. वी आर कंप्लीट इन I feel healing is a very personal journey. It cannot be dependent on somebody else. That's so true. And comparing people, यार, comparing your exes with your presents, with your futures. I think और मुझे लगता है कि आप फर्स्ट सेकंड मीटिंग करते हो आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के रिलेशनशिप या लाइक डेटिंग में जाने से भी ना वो टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना यार, इमोशन तो जा रहा है ना. और बिकॉज ये भी बहुत ट्रिकी है, बिकॉज सब लोग थोड़ी पहली मीटिंग में दिखा देंगे ये सब चीजें. ये धीरे धीरे अगर दिखाते भी है ना, जैसे इसने बोला कि वो स्टार्टिंग में अपनी एक्स की बातें भी करता था, तो कई बार ऐसा होता है ना, वी आर लाइक ओके आई एम कूल, आई डोंट केयर, क्योंकि एक्स भी बता रहा है हमें, और 5-6 साल पहले की बात है, तो इट्स नॉट लाइक अ न्यूअर थिंग. सो यू प्ले इट कूल एंड यू इग्नोर दैट थिंग. सो ऑब्वियसली वो आगे जाके बम फट गया. और एक रेड फ्लैग और भी है, शायद मेरे लिए है. मुझे शायद ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है जो ममास बॉय हैं, यू नो. सो जब भी कभी मैं किसी लड़के से मिलती हूँ तो सबसे पहले मैं उसका फैमिली लाइक वो कितना डिसीजन मेकर है और ये किस तरीके की चीज सोचता है, उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करती हूँ. और लेकिन अगर कोई लड़का बार बार मम्मी पापा एंड लाइक कि वो मेरा डिसाइड करते हैं, मैं उनके साथ चलता हूँ, तो ये मेरे लिए शायद बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि प्लीज बहन पीछे चले जाओ, ज्यादा मत सोचो. इट्स ओके टू लिसन टू योर पेरेंट्स, बट आई थिंक एट द एज ऑफ 40-42 अगर आप इतने इंडिपेंडेंट अभी भी नहीं हो कि आप अपने खुद के डिसीजंस ले सको, उसके लिए भी आपको अपने मॉम डैड को कंसल्ट करना है. आई थिंक थोड़ा सा अनफेयर है शायद. आई फील मोर देन दैट द अनफेयर पार्ट ओवर हियर इज कि यू शुड नॉट बी, जैसे इसके पिछले वाले ने एक्स से कंपेयर किया. लॉट ऑफ गाइज दे कंपेयर स्मॉल लिटिल थिंग्स विद देयर मदर्स. कि मेरी मम्मी तो ऐसे करती हैं, मेरी मम्मी तो इस तरह की चीजें करती. एंड आई एम लाइक मेरी मम्मी ऐसा खाना बनाती है, तुम ऐसा. डू नॉट कंपेयर विद एनीबडी. ट्रीट अ पर्सन इंडिविजुअली द वे दे आर. सो वही, चाहे वो एक्सेस हो, चाहे वो मम्मी हो, आप चाहे वो बहन ही क्यों ना हो, प्लीज किसी के साथ भी कंपैरिजन मत कीजिए. बिकॉज आई एम श्योर यू विल ऑल्सो नॉट लाइक इफ वी एंड अप कंपेयरिंग यू विद आवर एक्सेस और आवर ब्रदर्स और आवर डैडीज. वी आर ऑल्सो डैडीज लिटिल गर्ल्स यार. अल्टीमेटली हमें भी तो ऐसा ही कोई चाहिए, बट इट्स नॉट गुड. प्लीज weigh the individual for who the individual is rather than for what you expect them to be. Yeah, absolutely. एक चीज और, इसको तुम रेड फ्लैग बोलो, बट आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू लाइक कि आज की डेट में ना नोबडी नोज कि उसको चाहिए क्या यार. ये एक्चुअली में एक प्रॉब्लम और है. इसमें हम लोग मिलने जाते हैं, सामने वाला तुमको देखने के बाद डिसाइड करता है यार मुझे रिलेशनशिप में जाना है कि मुझे कैजुअल डेटिंग करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. बट डोंट यू थिंक ये सामने वाले बंदे से मिलके ही समझ में आएगा कि इसके साथ क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है? नहीं अमृत, क्या होता है कि कहीं ना कहीं तुम्हें ये तो पता होता है ना कि तुम्हें कैजुअल डेटिंग करनी है या तुम्हें रिलेशनशिप में जाना है या तुम्हें मैरिज करनी है. ये तो पहले अपने माइंड से क्लियर करो. अगर जब तुम इतना क्लियर होगे ना, तो अगर तुम रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो तो तुम उसी लड़की से मिलोगे या उसी लड़के से मिलोगे जो रिलेशनशिप में जाने की सोचता है. ये जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे साथ ही जाए. सो मैं ये कहना चाह रही हूँ, सपोज कर लो कि मुझे शादी करनी है. से आई मेट अ मैन हु वाज आल्सो लुकिंग टू गेट मैरिड, लेकिन मिलने के बाद मुझे लगा कि यार इस लड़के से मैं शादी तो नहीं कर सकती, लेकिन इसको मैं फ्रेंड जोन करके इसको दोस्त बना सकती हूँ. वो फाइन, वो ठीक है. लेकिन कई लोग ऐसा भी करते हैं कि मतलब लाइक बोलते हैं कि उन्हें रिलेशनशिप में जाना है और वो तुम्हारे साथ आगे बढ़ते हैं, कैजुअल डेटिंग टाइप करते हैं एंड 4 मीटिंग बाद खिसक लेते हैं यार. इट्स लाइक डेटिंग ऐप पे जब आपका वहां पे एक सेगमेंट होता है वेयर यू हैव टू फिल इन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर and what people type is I don't know. That is very irritating यार. Don't know yet. उसमें confuse. ये बम्बल पे don't know yet तो मैं सबसे पहले लेफ्ट स्वाइप करती हूँ यार. Yeah. What do you not know? It is a very simple question. Do you want a relationship or you just want a casual fling kind of a thing?
बोल दो ना जो चाहिए. What is this? I don't know what I want. So I think this is another toxic trait slash Yeah. red flag if you are kind of seeing or trying to see somebody who doesn't know yet where he is or what he Especially wants. like you are in your 30s and you still don't know what you want from your Late relationship. 30s to be precise. Closer to 40s also some men that I've met. वैसे ये तो सारे हमने अपने लिए बताए हैं. अभी अगर जैसे लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, उनके क्या क्या रेड फ्लैग्स होते होंगे? So okay, I'll share this one thing that I recently met a guy and I asked him this question that what are the first dates that did not construe into a second date for you? What happened or what went wrong? So he said that very basic things. अगर if I'm from a different field and the girl is from a different field, वहाँ पे यही समझ में आ गया कि यार उसका तो 9 to 5 जॉब है. She expects कि शाम को फ्री होकर चलो कॉल करेंगे, सुबह फ्री होकर चलो कॉल करेंगे. He's like, I can't do all of this. So for men, some of these women who expect कि दिन भर फोन करते रहो, मैसेज करते रहो, that's a red flag for them. Yeah, They ये won't मेरे go साथ on. भी है because I feel I need certain kind of space even if I'm in a relationship or even if I'm dating or whether it is just a new thing and you are trying to get to know each other. I think it should not be all the time. Pura then you cannot talk to somebody. You need your Space. personal Need space. space. You need a distance from that And- person also. But this is tricky. So recently I met a guy and very sweet guy and all that, but he has to message every hour. Now I'm confused I'm confused that if I tell him that okay listen, messaging every hour, I mean I can't do that. So will that hurt him? कि इसको बुरा तो नहीं लग जाएगा अगर मैं उसको ऐसे I message think करूँ? चक्कर में I think don't say that because maybe he might feel a little But offended. on the contrary, because I cannot reply every hour, my replies are just one word or monosyllables. Now that is also a problem. Or don't reply right away. You reply or read his message after some time and then reply so he'll understand that you are busy, that you have your life and you cannot be available all the time instantly to entertain him. But that's true also, yaar. We are what? It is true. I am 35 years old. I have lived my life for 35 years alone, and I have a certain way how I live. यार मैं बहुत 35 साल आसान नहीं होते हैं और कम नहीं होते हैं. अब अगर कोई लाइफ में आएगा, so he has to be himself, but he has to able to fit in my world. Similarly for me also, if I end up dating a 40-year-old man, I will have to be myself and fit in his world. I think this has also become a tricky area because हम लोग we are Yeah. so old and we are Yeah. set in our ways. या आई थिंक मुझे लगता है तुम लोग के साथ तो है ही, लेकिन मुझे लगता है लड़कों के साथ ज्यादा है. बिकॉज मैं जिन लड़कों से मिलती हूँ ना, सबके एक ही डायलॉग होती है, यार चिक चिक करने वाले लड़के नहीं चाहिए. एक ये तो जरूर आता है, कोई भी लड़का Yeah. बोलता है जो ये मैं सोचती हूँ कि हर लड़की चिक चिक करती है. हर लड़के के मुंह से मैंने ये कहानी सुनी है और ये हर वक्त लड़के बोलते हैं कि प्रियंका ऐसी लड़की चाहिए जो झगड़ा नहीं करे, ऐसी लड़की चाहिए जो बात बात पे पिंग नहीं करे, ऐसी लड़की चाहिए. तो मेरा एक क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? उसमें सब कुछ होता है, उसमें झगड़ा भी होता है, उसमें सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब आप किसी को ये बोल देते हो ना कि ऐसी लड़की नहीं चाहिए, ये नहीं करे, वो नहीं करे, तो मतलब कैसे आदमी आगे बढ़ेगा? So I think ये जो इस चीज का जो कोर है ना, इस चीज का कोर है एक्सपेक्टेशंस. झगड़े किटकिट सब होते हैं एक्सपेक्टेशन से, और एक्सपेक्टेशंस क्यों होती है? जहां पे कम्युनिकेशन कम होता है. सो आई थिंक द कोर ऑफ एनी गुड रिलेशनशिप हैज टू बी गुड कम्युनिकेशन. वहां पर अगर मुझे सपोज चाहिए कि प्रियंका, इफ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट प्रियंका आज शाम को मेरे साथ खाना खाएगी, अब ये मेरे दिमाग में मैंने एक्सपेक्ट कर लिया, प्रियंका को तो पता भी नहीं है, वो बेचारी अपना कोई प्लान बना के बैठी है. लेकिन अगर प्रियंका नहीं आई तो मैं मैसेज करूंगी, कहाँ हो तुम, आई क्यों नहीं, हमने तो डिनर करना था. एंड प्रियंका इज लाइक, अरे बट मुझे क्या पता तुमको डिनर करना था, तुम बोल देती. So I think it's just a matter of communicating to your loved ones, to your friends, and even to your होने वाला boyfriend or girlfriend or whatever. आई थिंक जब हम किसी लड़के को मिलने जाती हूँ ना, अगर लड़का मुझे पहले से ये बोल देता है ना कि यार मुझे ना उस लड़की से जो मेरी पास वाली थी उससे निकल गई क्योंकि वो चिकचिक करती थी, बहुत गिच करती थी, तो मेरे दिमाग में पता क्या बैठ जाता है, ओ शिट, इट मीन्स इसको ना सब कुछ इतना अच्छा चाहिए टाइप में, तो मेरे को प्रॉब्लम हुई ना. तुम अंडरस्टैंड करो इस चीज को. तो But इसने- nagging is different. वो जो झिकझिक और नहीं, बट चिक-चिक इसने है, कितना अच्छा आंसर दिया कि ये चीजें इसलिए होती है क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन गैपिंग होती है. So one thing I really want to say here, which might apply to everybody who is single in our age group, we are somewhere showing, sometimes we show kind of desperation to get in a relationship, and because of that we ignore a lot of red flags. I have done that personally. So I happened to meet a guy on a dating app only
who was showing a lot of, लाल झंडे. बट चूंकि उसने ये चीज बोल दी थी ना कि आई वॉन्ट टू गेट मैरिड एज सुन एज पॉसिबल, एंड मैं तो मतलब डेट ही शादी के लिए कर रहा हूँ. सो आई वॉज लाइक, इस बंदे को पता है इसको क्या चाहिए, इसको जो चाहिए वही मुझे भी चाहिए. आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, आई डोंट वॉन्ट टू बी रोमिंग अराउंड ऑन डेटिंग एप्स ऑल द टाइम. सो वी स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर, एंड शुरू में ही मुझे कुछ चीजें दिखी, जैसे ही वॉज क्वाइट शैलो रिगार्डिंग लुक्स. Now he was very fascinated and very attracted to me. So मुझे वो चीज कभी ऐसा नहीं लगा कि ये आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है कुछ है, और लगा भी तो शायद मैंने इग्नोर कर दिया. Because again I had this desperation to be in a relationship. Then he came across as a very materialistic guy. जैसे looks था वैसे ही उसके लिए पैसा था. But again it was never like a pressure on me. So मैंने उस चीज को लिया नहीं personally. धीरे धीरे ये जो चीजें है ना इतनी बड़ी कि मुझे वो खटकनी शुरू हुई. एंड वी डेटेड फॉर 6 months. आफ्टर 6 months आई रियलाइज कि भाई ये बंदा मुझे कह रहा है, नॉट दैट वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू डेट और समथिंग, आई मीन वील सी. एंड आई एम लाइक, तूने 1 महीने पहले मुझे बोला था कि वी आर डेटिंग नाउ, वी आर इन दैट फेज, and suddenly 1 महीने बाद you are not even sure. And then I got to know he's dating multiple people and he's exploring options and all that. And I'm like, इसके साइंस जो है ना ये मुझे बहुत पहले दिख गए थे. I ignored it because इसने सिर्फ एक चीज बोली थी, मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे शादी चाहिए, ये वो. सो कहीं ना कहीं हमें वो डेस्परेशन अपने अंदर से हटाना होगा, एंड वी हैव टू यूज आवर ब्रेन्स एज वेल. कि अगर कुछ दिख रहा है, अगर आपकी गट फीलिंग आपको कुछ कह रही है कि ये चीज सही नहीं है, जस्ट बैक अवे राइट देन. मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गट फीलिंग तो हमेशा से ही हम लोग को बोलती है, चाहे किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में जाओ, मतलब जैसा भी है. फर्स्ट डे सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब हम सेकेंड डे किसी से मिलने जाते हैं तो हमारी ऑब्जर्वेशन अलग टाइप की होती है. और जैसा कि प्रेरणा ने कहा है कि दिल को तो वैसे भी देखो, कहते हैं ना कि दिल लगाओ या दिमाग लगाओ, बट कहीं ना कहीं दिमाग को ओपन करके अब जिस एज में है सोचना बहुत जरूरी है. अच्छा बट यार ये तो नेवर एंडिंग चीज है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हार्ट एंड द माइंड. दिल को लग रहा होता है कि यार सही तो है, या सही हो जाएगा, या इस पे इन्वेस्ट करते हैं. एक ट्रेट है ना कि चल मटेरियलिस्टिक है, चल इन्वेस्ट करते हैं, टाइम हो सकता है चेंज हो जाए. कि कहीं ना कहीं ये एक रेड फ्लैग होता है, जो आपको लगता है ना कि इस विद टाइम वो चेंज हो जाएगा. नहीं, अगर आपको कहीं भी ऐसी फीलिंग हो रही है कि ये चीज आगे जाके चेंज करनी है या होनी चाहिए, प्लीज बैक अवे, दैट इज योर रेड फ्लैग. सो दिस इज वन ऑफ द टॉक्सिक ट्रेट्स, जहां आपको शुरू में ही पता है कि यार ये चीज से मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, होपिंग कि शायद ये चेंज हो जाए. दैट्स अ टॉक्सिक ट्रेट. ही तो लेट होती है. और अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा है ना, तो लिसन टू योर फ्रेंड्स, बिकॉज आई थिंक दोस्तों को तो ये चीजें दिख जाती हैं. यू कैन एक्चुअली लिसन टू अस ऑल्सो. अगर आपके ऐसे कुछ डेटिंग एक्सपीरियंसेस हैं एंड यू वांट टू नो कि हमारा क्या इनपुट है या आपको क्या करना चाहिए उसमें, प्लीज राइट टू अस at lemontequilatales@gmail.com. एक्चुअली हमारा ये चैनल YouTube पर भी है एज लेमन टेकीला टेल्स. प्लीज लीव योर कॉमेंट्स एंड वी वुड लव टू हियर मोर स्टोरीज एंड मोर फीडबैक फ्रॉम यू गाइज. So I think guys we've discussed enough toxic traits for today. अगर हमसे कुछ छूट गया हो तो प्लीज हमें जरूर याद दिलाइएगा. हम अगले एपिसोड में इस बारे में डेफिनेटली बात करेंगे. और अगर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज करिए, और हम पॉडकास्ट में अपने बताएंगे कि आपने क्या क्या अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, लाइक डेटिंग के थ्रू. And if you are lucky, we might even call you to participate in our podcast, and you can actually sit with us and talk with us to our audience. तो प्लीज भूलिएगा मत, जरूर हमें लिखिएगा at lemontequilatales@gmail.com. So guys, I think it's time to squeeze our lemon.